Very impressive information we have received from the great speakers. But I don't know actually where to begin. But let me tell you one thing. I'll give you something old, then we'll come to simple things which we can use in life. What does Shiv Puran say? Shiv Puran says कि सृष्टि ओम से बनी है. ठीक है. सो ओम से क्या निकला? शिव पुराण बोलता है एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस, माइंड, लॉजिक एंड ईगो, 8 चीज़ें. आई विल रिपीट. शिव पुराण बोलता है ओम से क्या निकला है? एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस, माइंड, लॉजिक एंड ईगो. ओम क्या कोई सॉलिड चीज़ है? आवाज़ है, ध्वनि है, और वो ध्वनि को कंडेंस करते 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 स्थूल चीज़ बनती है. तो माइंड, लॉजिक और ईगो, ये चीज़ पंडितों के हाथ में. लेक्चर देते रहेंगे, समझाते रहेंगे कि ईगो कैसे कंट्रोल करने का. ईगो इज़ द सोर्स. इफ़ यू आर यू समबडी, that is ego. If I am not having ego, I am not existing only. I will never exist. I am not even part of God. So I am merging. He is not merging with me. I am merging. That means I is there. So the first principle is ego. Ego is highest. Ego को तोड़ने का try ना करो, because you are because of ego. Otherwise ego is not there, you are not there only. Mind, yes, experts have already spoken. Mind is a monkey. Mind is the sound, and silence is our being. Our being is what? Silence. अंतरिक्ष में भी silence है actually. But our mind is so loud, we cannot hear the person who is speaking in front of me. So much knowledge he is giving, but possibly I cannot hear or understand everything because I am not able to listen. I am listening to my voice. So that is mind, monkey, and the largest sound on this earth. Logic, every human being is born in different planetary situations, and their magnetic effect on the body is according to that, and hence everybody's logic is different. तो ये कंट्रोल की चीज़ें नहीं है. कंट्रोल क्या है? एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस. ओके. अब स्पेस इज़ नॉट ए सोच. स्पेस इज़ ए एलिमेंट. जैसे ये सॉलिड चीज़ है, उसी तरीके से स्पेस एक एलिमेंट है. जैसे जल तत्व एक एलिमेंट है. ओके. तो जो आकाश तत्व है, एक परसेंटेज है, वो कंडेंस होता है तो क्या बनता है? वायु. और वायु कंडेंस होता है, वाइब्रेशन है. सब जो दिख रहा है, टच कर रहे हैं, वो नहीं है. वो वाइब्रेशन कम हो गई एयर की तो क्या बनेगी? अग्नि. और अग्नि का वाइब्रेशन कम हो गया तो क्या बनेगा? जल. और जल का वाइब्रेशन ख़त्म हो गया, रिड्यूस हो गया, तो पृथ्वी तत्व बनेगा. फिर पृथ्वी तत्व के अंदर भी और कम होते जाएंगे. वी हैव गॉट ए लाइफ ऑफ से 120 years, बट दैट स्टोन विच इज़ देयर विल हैव 10,000 years or 1 million years life. So everything is supporting each other, existential, but has got certain ratios. All these vibrations are existing all around us. All around us, this vibration is there. God has given us land. We made houses. And when we make a house, we are making 4 walls. We are marking a territory on land. The moment you mark territory, depending on the directional strength, air, water, fire, earth and space distribute themselves depending on the area you have marked. आप समझो ये लेंथ 20 फीट पकड़ा है, आप 21 फीट पकड़ोगे
डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट का चेंज हो जाएगा। 27 पकड़ोगे चेंज हो जाएगा। सो नो वास्तु टॉक्स अबाउट इट। लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट उसका फाउंडेशन ही नहीं है। इफ़ यू कैनॉट अंडरस्टैंड कि दैट दिस वाइब्रेशन इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ द length, the distribution of element is changing because of that, then no vastu. Now how to measure? Measurement is the biggest challenge which has faced people, that is why they don't want to measure. जो बोल दिया लगा दिया, जैसे बताया इन्होंने होम्योपैथी और एलोपैथी मिक्स करके दे देते हैं। तो जो किसी ने बोला और दुकानों में जाते हैं, भैया ये बताओ ये लोग लगाते कहाँ हैं? भाई ये तो हॉल में लगा देने का सेंटर में है, ठीक है, आके ज्ञान दे देंगे सेंटर में लगाने का है। वो बेचारा सुनने वाले को भी नहीं पता ये क्यों हो रहा है। सो बेसिक क्वेश्चन इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेजरमेंट्स। वंस यू आर एबल टू मेजर, you know that the whole universe is having only one ratio, 1 is to 1.618. It is the golden ratio. Our bodies are made to that. All the plants grow as per that, animals grow as per that, the flowers grow as per that. The distance between sun and earth and moon, between earth and Venus, Venus and moon, all these things are having definite ratio. And this is called the golden ratio on which everything survives. If it is out, that means there is imbalance. And the ultimate method of bringing about a balance is by balancing all the elements percentage wise. जैसे कि हम लोग बोलते हैं अग्नि तत्व है घर के अंदर, तो वो 85% होना चाहिए, ठीक है। That means the vibration of फायर, इसका मतलब ये नहीं कि उधर फायर नहीं, फायर का वाइब्रेशन नहीं है या उधर फायर का वाइब्रेशन नहीं है, कमी है। साउथ ईस्ट के अंदर फायर का वाइब्रेशन ज़्यादा है, ओके। तो जहाँ उधर फायर का वाइब्रेशन है, तो फायर का वाइब्रेशन वाटर के साथ क्लैश होएगा ना, फायर कम होएगी तो वाटर बनेगा ना। तो व्हाट हैपेंस इज कि दैट वी ट्राई टू बेस्ट टू work out a situation where you can cook in the southeast. That is the reason. If we go and cook in the northeast where there is water element, तो फायर की ताकत कम हो जाएगी ना। इसका ये मतलब है खाना नहीं बनेगा या टेस्टी नहीं बनेगा, मगर उसका जो इम्बैलेंस ऑफ एलिमेंट्स का इफ़ेक्ट आएगा हमारी बॉडी के ऊपर, वो इफ़ेक्ट आपको सहना पड़ेगा। Same with what is happening in nature cure, same is happening in Ayurveda, and unless and until you are not creating a balance within your body, you are creating rog. If you are not creating a balance in your home, you are creating a rog, nothing else. Okay. Now simple things, I won't be taking too much time. Let me tell you one thing simple. नज़र लगती है सबको, लगती है ना। तो जब नज़र लगती है तो क्या होता है, दिस पोर्शन नॉर्थ, लोअर पोर्शन साउथ। तो घर के अंदर नॉर्थ और साउथ इफ़ेक्ट होएगा। नज़र लगी है घर को या नज़र लगी है खुद को, तो माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि बुध इधर है, नॉर्थ इधर है, बुध प्लैनेट इधर बैठा है, तो योर माइंड विल बी डिस्टर्ब्ड। देन अगर नज़र लगी है, आदमी को कुछ करने को दिल नहीं हो रहा है, बैठा है, सो रहा है, अच्छा ये जा इधर जाके तेरे को पेमेंट मिल रही है, जा ले ले, बहुत दिन से पेंडिंग है, आज चेक, आज मैंने को नहीं जाना है और किसी को भेज दो। वाई? बिकॉज नाउ दैट साउथ इज अफेक्टेड. South is the thing that will mangle, it will make you do work, it will give you action, it will give you results, but you don't want to do anything. So South is affected in your body, South is affected in your home, right? अभी आपको एक प्रिंसिपल बताता हूँ.
night is followed by day, is followed by night, is followed by day. The principle of regular change. Happiness, sadness, upsetness, again that cycle is there. So ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल नहीं है? Not a single thing. Everything is sinusoidal, right? Even light is moving in sinusoidal form, sound is moving in that way. So similarly, positive is followed by negative, is followed by positive, is followed by, and the principle of polarity is that everything is created dual. If there is positive, there is equal amount of negative, equal. Just as she said that, can you avoid negative thoughts? No. How is it possible? You have to allow them to come and go, respect it. अच्छा ठीक है, तू ठीक है, जैसे बोला हाँ ठीक है, come, go. पॉजिटिव भी आया जाएगा, बुरा भी आया जाएगा. Just be an observer, no? What is that? So now coming back to नज़र. ये जो प्रिंसिपल है फ्लक्चुएशन का, आप सिर्फ गर्म पानी लो, समुद्र का नमक डालो और घर में पोता करो. ओके, तो नमक क्या करता है? नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेता है. जैसे कि बचपन में नज़र लगती है, नमक लेके माँ फिरा देती है और फिर फेंक देती है, ठीक है, तो नज़र निकल जाती है. नहीं निकलती ऐसा नहीं, निकलती है. सॉल्ट इज़ ए एब्जॉर्बेंट. सिमिलरली आप गर्म पानी से पोता मार लो, फॉलोड बाय प्रिंसिपल ठंडे पानी से करो. देखो, एक चीज़ करोगे तो दिन कर दिया तो रात हुई ही नहीं, तो काम नहीं हुआ. अभी आप बहुत जगह सुनोगे कि भाई नमक रख दो, नमक से पोता मार दो. नो, इनकम्प्लीट. गर्म पानी से पोता मारो, उसके बाद में आप ठंडे पानी से करो. क्रिएट दैट रिवर्सल. द मोमेंट यू क्रिएट द रिवर्सल, नेगेटिविटी विल गो अवे. So this is how you clean your body and remove the nazar, and similarly this is how you clean your home and remove the negativity of your house. Try it once in 15 days. I always recommend once in 15 days, simply because moon cycles are there in 28 days. तुम अमावस के बाद करो, full moon के बाद करो, it gives you good results, right? Now we can talk about, we are talking about Vastu. Tell me one thing, अर्थ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? एनीबॉडी? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? No. अभी देखो, I'll tell you what. किधर न किधर आकाश में बारिश हो रही है. इंडिया में हो रही है, यूरोप में हो रही है, अमेरिका में हो रही है, नॉर्थ पोल में हो रही है, साउथ पोल में हो रही है. जहाँ बारिश होती है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होता है, एंड देयर इज़ लाइटनिंग. देयर इज़ लाइटनिंग. और लाइटनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, वो 90% ज़मीन के ऊपर क्यों आती है? लाइफ इज़ पोलैरिटी, पॉजिटिव नेगेटिव. पूरा सर्किट कंप्लीट करने के लिए उसको नीचे आना पड़ता है. समुंदर में गिरी 75 to 80% of electricity goes on the sea only, but because that spark is positive, it needs to have a negative potential to move from there to earth, whether it is goes in water or on earth. So it is simple electricity. Earth is negative, and that potential maintains the balance of air, water, fire, earth, space in our. Have you read anything like that in Vastu books? It's not there. We have to understand electricity for that and apply our mind to see how we can improve. Now in 2002 I had made a thing. Now अभी देखो क्या है कि हम ये पानी का एनर्जी देखें, इसका भी तो ऑरा के ऊपर काम किया है हमने. तो शरीर का ऑरा देखते हैं, आपके बॉडी के अंदर कौन से कलर्स आते हैं वो देखते हैं,
और आपके 7 लेयर्स के अंदर किधर अटक है, तो हमको पता चलता है कि मेंटली दिस पर्सन इज स्टक हियर, स्पिरिचुअली दिस पर्सन इज स्टक हियर। और आपने जन्म क्यों लिया? बिकॉज यू हैव टू ओवरकम समथिंग। नो, व्हाट इज इट दैट यू हैव टू ओवरकम? ऑल ऑफ अस हैव टू ओवरकम समथिंग. So we are either stuck in mind, logic or ego, or the child which she spoke about, right? People who are trained can understand. People who are not trained have to depend. They have to depend. So now they are talking about aura. This has got, water is the living being and we can measure on water. So now what happened in 2002, I made a plate by which you can increase the energy of water. First, increase the energy. The energy of this water is around 2000 bovis. Okay, a human being has an energy of 9500 bovis. It's a unit of measurement. A house which is positive has got 9500 plus bovis. It can be 19,500, 29,500. And in Vastu you say, no, they say, दरवाज़ा इधर होना चाहिए, माप के बताएंगे एकदम परफेक्टली। उसके जगह पे क्यों बोलते हैं ये देवता बैठा है? देवता वेवता कुछ नहीं मानता मैं ये मानता हूँ कि इधर एनर्जी कितना है, और वो उधर मापने से हमको एनर्जी मेजर मिलता है 49,500 बोविस, which is so many times, 4 times more than our body energy. So वो देवता हो गया। वो जहाँ एनर्जी डिप्लीट होती क्या हो गया? राक्षस हो गया। So our saints have told it in a way that people understand and they really believe that it is that. But they cannot tell them कि भाई ठीक है, this is the way of measurement, I can see this. उनको तो समझता है और दिखता है, वो आपको कैसे समझाए? जनरल पब्लिक क्या समझे? तो ये परिभाषा है, एक सिस्टम है समझाने का, विच आई थिंक इज़ वेरी पावरफुल. ओके, सो नाउ इन 2002 आई इंक्रीज द एनर्जी ऑफ वाटर टू 9500 bovis. In 2010 I increased it to 49,500. 49,500 energy is the energy of water at Harividwa, Ganga. Okay, and fortunately last year it has so happened that we have made a device by which you can get the measurement of water as per Gangotri, 1 lakh bovis. So now your energy is 9,500 and you drink a water which is so many times higher than your body energy. उसका ऑरा बहुत बड़ा है, तो सेंट ही हो गया ना. जब हिमालय की एनर्जी आपको इधर मिल रही है in your own home, then it is going to increase and purify you more. So now this is having a certain aura. I will just show you. ये इतना ऑरा है इसका. So I will put it on this. Now you see the difference. इतना ऑरा बढ़ गया. Okay. So now you are drinking high energy water. I'll tell you one thing. If somebody is having medicine, वो इसके ऊपर रखेगा तो क्या होएगा? एफिशिएंसी बढ़ जाएगा. लेकिन एक चीज़ बढ़ जाएगी और वो मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट बढ़ जाएगा. बढ़ेगा? जो भी डाउजिंग कर सकता है वो मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी आके मेजर कर लेवे. आई हैव पुट ए सिंबल ओवर हियर. ओके, दिस प्लेट विल इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द मेडिसिन. इट विल न्यूट्रलाइज द नेगेटिव इफेक्ट्स. कोई भी डाउजिंग जानता है, इसके ऊपर मेडिसिन रखें और मेजर करें. अभी उसका साइड इफ़ेक्ट है, 15 सेकेंड के अंदर आपको रिजल्ट आ जाएगा. ओके, सो नाउ देर इज़ नॉट ओनली ए कॉम्बिनेशन ऑफ, देखिए मैं रात को मैं तो इसके ऊपर पानी रख के रखता हूँ. सो आई एम हैविंग हाई एनर्जी वाटर. भरत भाई जानते मेरी हेल्थ कितनी ख़राब थी कुछ साल पहले. नाउ आई हैव चेंज्ड ए लॉट.
सो ये सब ट्रीटमेंट मैंने खुद अपने ऊपर किया हुआ है, और वैसे ही आई एम द गिनी पिग, सो आई ट्राई दैट एवरीथिंग। सो पानी का एनर्जी भी इंक्रीज़ करके पीने का, मेडिसिन का एनर्जी, लेकिन क्या है कि मेडिसिन का एनर्जी आज तक मैंने नहीं किया था, बिकॉज उसका कोई भी मेडिसिन हो गए उसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट अलग तो होएगा ही होएगा ना, तो उसको न्यूट्रलाइज कैसा करें। दिस इज़ द हीलिंग सिंबल, इट इज़ नॉट मेड बाय मी, but it is very very powerful. I have utilized in this. I am not claiming any ownership of this, anybody can make it, but this is giving you 100% result. So in order कि भाई आप वास्तु यूज़ करो, एनर्जी यूज़ करो, आयुर्वेदिक यूज़ करो, होम्योपैथिक यूज़ करो, कुछ भी करो और घर को बैलेंस करो, लेकिन एक चीज़ करो, अपना ध्यान करो, लव योरसेल्फ। नमस्ते।